Hello, my dear students. Welcome to our important lecture for endodontics. This might be the last lecture for endodontics because till now we have completed a lot in endodontics, starting from basic things, diagnosis, treatment plan, vitality test, what are the steps, access opening, what are the important things you have to take care of while access opening, then biomechanical preparation, which are the various techniques, various obturation systems, latest advancements in obturation. All these things we have discussed. Now, today's lecture is important because when you know the procedure, after that you have to judge clinically. There is somewhat different. In which patient you will go for pulp capping, in which patient you will go for RCT. That is the first thing. Second thing, how to differentiate the pain, how to differentiate the symptoms, how to go for proper treatment plan. All these things are important because nowadays what happens, even if the caries is superficial, many dentists go for root canal treatment, but this is unethical. You might be sued if you are in the abroad countries. So proper history is important. Now this word itself is applied to any question, any MCQ or any interview questionnaire. For example, if you are asked what are the symptoms of this irreversible pulpitis, so you can tell, okay, sir, after taking proper history, I will conclude that following are the symptoms of irreversible pulpitis. Then you will tell night pain will be there, constant pain will be there, throbbing pain might be there, dull pain might be there. So all these features you can tell, but the word history in your answer suggests that you will take proper history before concluding. It is important. Okay. So in today's lecture we will discuss all these important things, and from this topic today's lecture at least 5 MCQs will be asked in your endo portion. So I insist you that you go through these notes properly, you go through all these topics thoroughly, and after you are sure that you are knowing these topics, then you have to go with test. Then you can understand what kind of questions are asked. One request for all the students, those who are present, please mark their present. Afterwards, we start today's lecture. Today's lecture is somewhat typical from this GPSC preparation. Many times when you are preparing for GPSC, people think that you just go with pulse, dental pulse. Okay, then it is enough. But what this pulse helps you, dental pulse book, it helps you in creating a slight basic of a subject in your mind, that these are the few topics which you should know before appearing any exam. Once you clear your pulse, you should have a habit of going through all the rest topics which are unknown to you. So how can you determine whether these topics are new or unknown to you? You have to give unlimited tests in our test series. With this result, you will be knowing that few questions are there which you have never read, which you have never heard, or which you have never thought about. So with this, at artificial intelligence, you will be able to explore yourself that how much endodontics you are perfect. So we will start today's lecture. We will first take medical history, okay, then chief complaint. You have to know whether the pain is odontogenic, related to tooth, or related to other tissues. First of all, you can tell pain is there or not, okay, depending upon the pain type, burning pain, then pain persists over months of year, okay, and spontaneous multiple teeth are painful. Okay, this is important where there is non-odontogenic pain.
Here you cannot specify the local cause. Okay, the pain may be non-variable, not exact. You can correlate. It is long, constant. For example, patient with generalized periodontitis comes, he will tell that the full jaw left side is paining while chewing, or my gums are inflamed, or gums are painful. So it seems that it is non-odontogenic pain. Now, when you have to go for RCT and when there is contraindication for RCT. Okay, but limitation are there in few cases. Okay, first of all, when there is a periapical lesion and patient is already having kidney transplant, it means for any transplant immunity will be low. So in compromised immunity patients, we cannot go for RCT. So such MCQ can be asked in your exam. Okay, which of the following is a contraindication for RCT? So one will be immunity. Second thing is cardiac surgery. Okay, in the future, patient will be going for cardiac surgery. So there is risk of infective endocarditis. Okay, two contraindications are there. Now, in kidney transplant, listen, if the tooth is vital, then only you can do RCT. If there is a periapical lesion, means tooth is non-vital, pulp is necrosed, you have to go for extraction. Okay. So till now, some important topics which we have discussed right now are when RCT is contraindicated. Most important MCQ. Okay. Then examination. While going for RCT, you have to examine properly before starting the RCT. Depending upon the lesion, whether it is abscess, cyst, you have to properly confirm. Okay. Then we have, for this you have to go for proper clinical test, palpation. Then radiographs also help a lot. Then differential diagnosis of a well-defined periapical radiolucency associated with a vital pulp. Many times pulp is vital, lekin there is periapical radiolucency in all these cases. So if you don't take proper radiograph, you will think that patient is having some problem. Okay, then you have to check the vitality of the pulp. Okay, then you will be going with final diagnosis. So in fourth conditions like traumatic bone cyst, developmental bone defect, periapical cementoma, or early ossifying fibroma, in all these things we find periapical radiolucency. But pulp is vital, so you cannot go for RCT. You have to go SOS with these disorders. Okay. SOS means depending upon the patient's willingness and patient's future plan for the treatment. Okay. प्री ऑपरेटिव रेडियोग्राफ्स, तो यहां से एमसीक्यू कैसा बन सकता है? ठीक है, यहाँ पे एमसीक्यू ऐसा बन सकता है कि आरसीटी इंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो यहाँ पे तीन जो होंगे ऊपर के ये होंगे और नीचे लिखा होगा कुछ और लिखा होगा, क्रॉनिक पल्पाइटिस या नेक्रोस्ट पल्पाइटिस या क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस, ऐसे कुछ लिखा होगा। तो ये तीनों में तो आरसीटी नहीं आएगी, बिकॉज पल्प इज वाइटल। वाइटल पल्प होता है तो हम आरसीटी क्यों करेंगे? ठीक है, यू हैव टू गो फॉर आरसीटी व्हेन यू आर अनेबल टू सेव द पल्प, तभी आपको आरसीटी करनी पड़ेगी। इसलिए तो हम पल्प के प्रोटेक्शन वाले जो मेजर्स होते हैं, पल्प कैपिंग
याद आया, हमने आपको पढ़ाया था पल्प कैपिंग, पल्पोटोमी, एपेक्सोजेनेसिस, एपेक्सिफिकेशन। तो एक या दो एमसीक्यू इसमें से आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जितने भी टॉपिक्स है वो तो क्लियर कट होने ही चाहिए। कौन कौन से एजेंट है, कब करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, कब लिमिटेशन होती है उसकी। तो ऑल दिस आंसर शुड बी इन योर माइंड। ओके, नाउ आपको एग्जाम में भी ये भी पूछा जाएगा रेडियोग्राफ से क्या क्या आपको पता चलता है। तो बहुत सारी चीज होती है, ये हमने आपको कॉमनली बता दिया था। रेडियोग्राफ का एडवांटेज यूज ओएस में आता है, पेरियो में आता है, पीडो में आता है। तो पहले तो पैथोलॉजी पता चलेगी। पहले तो देखो नॉर्मल एनाटॉमी पता चलेगी उसकी, ठीक है। फिर क्या चलेगा, पैथोलॉजी पता चलेगी। फिर रूट्स के बारे में पता चलेगा, कितने डायलेसरेशन है, ठीक है। फिर सिस्ट है, एब्सेस है, उसका थोड़ा इवेल्युएशन आता है। परफेक्टली हम कभी भी नहीं बोल सकते हैं रेडियोग्राफ देखकर कि ये सिस्ट है, एब्सेस है, ट्यूमर है, ठीक है। हम ये कब बोल सकते हैं, रेडियोग्राफ प्लस हिस्टोपैथ प्लस क्लिनिकल इवेल्युएशन, ये तीनों के बाद ही हम विल बी गोइंग फॉर फाइनल डायग्नोसिस। ओके, तो ये याद रखना, रेडियोग्राफ नेवर गिव्स यू फाइनल डायग्नोसिस, इट इज जस्ट एन एड। और वो कितना एड है, खाली 1%। बाकी क्लिनिकल हिस्ट्री और दूसरे मैटर करते हैं दूसरी चीजें। अब रेडियोग्राफ से क्या पता चलता है, कैल्सिफाइड कैनाल से, पेटेंट कैनाल से, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग आरसीटी यू हैव टू टेक रेडियोग्राफ एंड दिस विल एक्सप्लेन द प्रोग्नोसिस। आपने पेशेंट का रेडियोग्राफ लिया, देखा कि कैल्सिफाइड कैनाल है, तो बोल सकते हो कि इसका प्रोग्नोसिस पुअर है, हम ट्राई करते हैं, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन कैल्सिफाइड कैनाल से है तो उसके आउटकम थोड़े वीक आते हैं। आप बोलो तो मैं आरसीटी चालू करता हूँ, नहीं बोलो तो नहीं करता हूँ। यू हैव टू एक्सप्लेन दिस टू द पेशेंट, ठीक है। फिर कभी कभार साइनस होता है, जब क्रॉनिक लीजन हो जाता है, फर्स्ट ड्रेन हो जाना चालू हो जाता है जिंजाइवा के बाहर, तब उसको बोलते हैं साइनस ट्रैक्ट, ठीक है। तो साइनस ट्रैक्ट को लोकेट करने के लिए उसके अंदर आपको गट्टा पर्चा कौन डालना है, फिर आपको रेडियोग्राफ लेना है, तब जाके आपको पता चलेगा कि किस दांत के साथ वो साइनस ट्रैक्ट जुड़ा हुआ है। ओरिएंटेशन ऑफ टूथ, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, टूथ का ओरिएंटेशन थोड़ा अलग होता है, लिंगुअल होता है, टिल्टेड होता है। तो रेडियोग्राफ से हमको पता चलेगा कि ये थोड़ा ओरिएंटेशन और है। तो यू हैव टू प्रिवेंट द एक्सेस बर्ड ट्रेवल, बर्ड ट्रांसपोर्ट। लेंथ ऑफ द रूट, रेडियोग्राफ लेकर ही आपको थोड़ा अंदाजा आ जाता है कि टूथ की लंबाई कैसी है, बट ऑल डिपेंड्स अपॉन एंगुलेशन एंड डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे पक्की लेंथ कभी पता नहीं चलती है। ये आपको रेडियोग्राफ का इंपॉर्टेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन है। रेडियोग्राफ्स इन प्रोस्टोडोंटिक्स, रेडियोग्राफ्स इन ओरल सर्जरी, रेडियोग्राफ्स इन एंडोडोंटिक्स, पेरियोडोंटिक्स एटसेट्रा, ठीक है। अब एनेस्थेसिया, एंडोडोंटिक्स में एनेस्थेसिया क्या क्या होता है, कैसे देना होता है, ठीक है। तो वाइटल टूथ होता है ना, तब आपको एलए देना है, ठीक है। याद रखिए, वाइटल टूथ होता है, टेंडर टू परकशन होता है और पेशेंट एंग्जियस होता है, तब जाके आपको लोकल एनेस्थेसिया देना है। टूथ नॉन वाइटल है तो आपको पहले एलए नहीं देना है। आपको देखना है कि पेशेंट को बीच में पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप एलए देना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर एक चीज ये भी है, नॉन वाइटल टूथ है तो आपको एपेक्स के बाहर फाइल को नहीं जाने देना है। बट अभी बहुत सारे डेंटिस्ट एपेक्स लोकेटर तो यूज कर ही रहे हैं, या अदरवाइज टेक्टाइल सेंसेशन वाले भी डेंटिस्ट होते हैं जो एपेक्स लोकेटर पर डिपेंड नहीं करते हैं, तो टेक्टाइल सेंसेशन पर वो करते हैं, ठीक है। आरसीटी तो अलग अलग टाइप का अलग अलग एनेस्थेटाइज वाला पोर्शन है डिपेंडिंग अपॉन द टूथ, ठीक है। आपको अलग अलग एले देना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या होता है कि आप थोड़ा दोगे एले, फिर आपको पता चलेगा। इससे अच्छा है कि आप कंप्लीट एनेस्थेसिया दे दो,
डिपेंडिंग अपॉन द नर्व सप्लाई ऑफ द टूथ, तभी जाके आपको शांति होगी। वरना पेशेंट ही आपको पूछेंगे बीच में कि सर आप ठीक से ट्रीटमेंट करिए, मुझे दर्द हो रहा है। मैनी पेशेंट्स विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट ड्यू टू द पेन। ठीक है, ये प्रैक्टिकल चीज है। थियरी अलग होती है और प्रैक्टिकल अलग होता है। फिर कैरीज रिमूवल और एक्सेस कैविटी। ठीक है, ये आपका बेसिक जो पोर्शन है उसको आपको करना है, कैरीज रिमूव कर देना है, उसके ऊपर टेम्पररी फिलिंग दे सकते हो। ठीक है, लेकिन कभी कभार माइक्रो लीकेज के चांस है। अगर आपने टेम्पररी फिलिंग दिया है तो इससे अच्छा है कि आप परमानेंट रिस्टोरेशन दे दे। ठीक है, अब कभी कभार ये आता है कि जब कैरीज आपको निकालना हो तो याद रखिए कि हैंडपीस नहीं यूज करना है, एरोटर। आपको नजदीक थोड़े जाना है, फिर आपको स्पून एक्सकेवेटर जो होता है ना उससे कैरीज निकालनी है। क्योंकि हैंडपीस की कभी कभार स्पीड इतनी होती है ना कि वो कैरीज तो निकाल देगा लेकिन परफोरेशन भी कर देगा और पल्प को इरिटेट भी कर सकता है, इन्फ्लेम भी कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रहे। नाउ कभी कभार ये चीज आपको ध्यान रखना है। यू ऑलवेज परफोरेट द पल्प चैम्बर अबाउट द वाइडेस्ट कैनाल। ठीक है, तो ये उसका पहला स्टेप है। जब आप आरसीटी में एक्सेस ओपनिंग करोगे ना तो जो भी कैनाल वाइड होगी ना वहां पे आपको थोड़ा फील होगा बर का ड्रॉप, वहां ही आपको फोकस करना है पहले। ठीक है, बाकी सब जगह पर बाद में करना है। ठीक है, याद रहे। अब पहले आपने दिया और पेशेंट को पता चला कि फिर भी पेन है तो आपको इंट्रापल्पल इंजेक्शन का भी यूज करना पड़ेगा। इंट्रापल्पल यू कैन गिव लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है, अब डी रूफिंग क्यों करते हैं वो तो आपको पता ही होगा। ऊपर का पल्प का डी रूफिंग करोगे तभी जाके पल्प का सारा टिश्यू चला जाएगा। ठीक है, और अगर पल्प रहता है तो अंदर का टूथ डिसकलर हो सकता है बाद में। आपने देखा होगा इंटरनल रिजॉर्प्शन में पिंक टूथ हो जाता है। ठीक है, तो पल्प को आपको कंप्लीटली निकालना पड़ेगा और उसके लिए आपको डी रूफिंग करना पड़ेगा। तो ये एमसीक्यू कैसा बन सकता है यहाँ पे? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डी रूफिंग इन एक्सेस कैविटी इज, तो आपको ये आंसर ढूंढना है, रिमूव ऑल द पल्पल टिश्यू। ये नहीं होता है तो आपको ये करना है, अवॉइड टूथ डिस्कलरेशन। ठीक है, फिर डी रूफिंग का दूसरा फायदा है स्ट्रेट लाइन एक्सेस। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन एक्सेस का क्या फायदा है? आपको फाइल्स अगर स्ट्रेट लाइन में एक्सेस होती है और फाइल्स आराम से एपेक्स तक पहुंच सकती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एक्सेस नहीं होगा तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी, परफोरेशन में होगा, फाइल बेंड होने के चांस है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिगर में ना तो ये स्ट्रेट लाइन एक्सेस नहीं है, स्ट्रेट लाइन एक्सेस ये होगा। फिर एरर्स इन द एक्सेस कैविटी। एक्सेस कैविटी बनाते हो तो क्या क्या दिक्कत आता है? तो ये तो हमने पहले ही आपको बता दिया था। पहले तो परफोरेशन आता है, अगर आप अलग एंगुलेशन करते हो तो। फिर जिपिंग आता है, आपने एपेक्स को बड़ा वाइड कर दिया। ठीक है, फिर लेज आता है, आपने एपेकल स्टॉप पहले ही बना दिया। जो एपेक्स का स्टॉप यहाँ पे होता है वो आपने यहाँ पे बना दिया कहीं पे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, फिर एक याद रखना, आरसीटी कभी भी स्टार्ट करते हो या एंड करते हो वो इरिगेशन से होता है। जैसे आपका एक्सेस ओपनिंग होता है, आपको सोडियम हाइपोक्लोराइट है और भी अच्छे इरिगेंट से उससे इरिगेट कर देना है। और जब आप फाइनली ऑब्चुरेट करते हो उससे पहले भी आपको इरिगेट करके ऑब्चुरेट करना है। ठीक है, अब
इंस्ट्रूमेंटेशन में हमने पढ़ा था गेट्स ग्लिजन ड्रिल जो होती है ना, वो ओरिफिस को वाइड करने के लिए यूज करते हैं। जहाँ हम एंटीरियर टीथ का सिंगुलर वाइड होता है वहां पे वो यूज होता है, पीछे के दांतों में वो यूज नहीं होता है। फिर पिजो रिमर, पिजो रिमर जो होता है ना, वो आपको कैसे याद रखना है, पिजो में पी आता है, तो पी में पोस्ट एंड कोर आएगा। पोस्ट एंड कोर में क्या करते हैं, हम आरसीटी पूरी करके कैनल्स को फिल कर देते हैं गट्टा पर्चा से। बाद में वो गट्टा पर्चा खाली 3 या 6 मिलीमीटर एपिकल रीजन में रखना है, बाकी सब गट्टा पर्चा को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए पोस्ट एंड कोर के टाइम हम पीजो रिमर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये पीजो रिमर और गट्टा वो गेट्स ग्लिजन ड्रिल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, वर्किंग लेंथ कैसे एस्टिमेट करोगे, एपेक्स लोकेटर से। ठीक है, अब पक्की करना है तो एपेक्स लोकेटर प्लस रेडियोग्राफ। रेडियोग्राफ में क्या करोगे, आप फाइल को इंसर्ट करोगे जहां तक वो फाइल जा रही है। ठीक है, रबर स्टॉप यहाँ ऊपर लगा दोगे टूथ के ऊपर, और फिर आपको रेडियोग्राफ करना है, लेना है। तो रेडियोग्राफ में आपको पता चल जाएगा कि फाइल इज गोइंग बियॉन्ड द एपेक्स और इट इज बिलो द एपेक्स। ठीक है, इट इज शॉर्ट ऑफ एपेक्स और इट इज गोइंग बियॉन्ड द एपेक्स। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। फिर आते हैं हम कैसे फॉल्स रीडिंग्स। एपेक्स लोकेटर तो एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो उसमें कभी कभार फॉल्स रीडिंग्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, आपको ठीक से इरिगेट कैनाल कर देना है। ठीक है, कैनाल ज़्यादा वेट भी नहीं होनी चाहिए और ड्राई भी नहीं होनी चाहिए। फिर सुटेबल फाइल साइज लेनी है, 10 या 15। आप बड़ी फाइल यूज करोगे तो जल्दी, अगर एपेक्स बहुत ही दूर होगा फिर भी एपेक्स लोकेटर का सिग्नल बच जाएगा। उसका प्रिंसिपल यही है कि जब फाइल को ज़्यादा दिक्कत होती है आगे जाने में, वो ब्लॉक हो जाता है जहाँ नैरोस्ट पार्ट होता है कैनल का, तो फाइल ब्लॉक हो जाएगी और तब जाके वो एपेक्स लोकेटर अपना सिग्नल बताएगा। ठीक है, तो अगर आप मानो कि फाइल बहुत ही नैरो है, 10 नंबर की विड्थ है, और आपने 40 मिलीमीटर 40 नंबर का फाइल यूज किया, तो आधी जाएगी, तभी एपेक्स लोकेटर का सिग्नल बच जाएगा कि एपेक्स आ गया है। तो दिस माइट बी समटाइम्स रॉन्ग रीडिंग्स। ठीक है, याद रहे। बाय मैकेनिकल प्रिपरेशन के टाइम भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभार ओवल कैनाल्स होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दो कैनाल्स की तरह ये उसको ट्रीट करना है और ठीक तरह से इरिगेट करना है और ठीक तरह से क्लीन करना है। ठीक है, प्रीमोलर में होती है कभी कभार एक कैनाल, लेकिन थोड़ी वाइड भी होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको आरसीटी में ध्यान रखना है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन में तो आपको पता ही है आरसीटी कैसे करते हैं। ठीक है, मास्टर एपिकल फाइल तक वही फाइल यूज कीजिए, फिर एक एक लेंथ 1-1 सेंटीमीटर कम करते जाइए, 1-1 मिलीमीटर कम करते जाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्किंग लेंथ 20 की है, तो मास्टर एपिकल फाइल 35 तक यूज करना है, 25, 30 और 35। फिर जब 40 की यूज करोगे तो एक वर्किंग लेंथ में से माइनस कर देना है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ के जाना है आपको। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टेक्निक है, ये खाली थियरिटिकली काम आती है। अभी तो प्रोटेपर की फाइल्स आ गई है तो कोई दिक्कत है नहीं, टाइम सेव मेथड आ गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बीएमपी कब कंप्लीट हम मान सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि पहले इरिगेट किया, फिर आपको इरिगेशन के टाइम वो से आपको देखना है कि इरिगेशन के बाद कैनाल के अंदर क्या है। तो अगर कलर क्लियर आता है तभी कैनाल साफ है, कुछ डिस्कलरेशन आता है तब जाके आपको आइडिया होना चाहिए कि अभी भी कैनाल में
ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। ठीक है, ये याद रहेगा। अब आता है केमिकल इरिगेंट वाले, इरिगेशन के जो मटेरियल्स होते हैं सॉल्यूशंस, वो केमिकली नॉन एक्टिव, एक तो वाटर, सलाइन और एनेस्थीसिया, और केमिकली एक्टिव जो अपना इफेक्ट कुछ लाते हैं टिश्यू पर। एक तो NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड, वो टिश्यू को सॉल्वेंट है, डिसॉल्व कर देता है और एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। क्लोरहेक्सिडिन एंटीबैक्टीरियल। हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो ऑक्सीडाइज करता है, इसलिए वो ब्लीचिंग में भी काम आएगा। और इरिटिन, इट्स ए चिलेटिंग एजेंट, ठीक है। तो ये उसके रोल्स है, याद रहे। तो आपको अगर MCQ कोई आता है इसमें से कुछ ऐसा है कि चिलेटिंग एजेंट को यूज करना है तो EDT आएगा, बेस्ट आएगा तो सोडियम हाइपोक्लोराइड आएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, दो चीजों को कंबाइन कर दीजिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड और क्लोरेक्स को कंबाइन कर दिया, और आपने देखा कि ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड और EDTA। फिर आपने देखा कि कोई डिस्कलरेशन रहता नहीं पेशेंट के टीथ के अंदर। सोडियम हाइपोक्लोराइड और साइट्रिक एसिड वाइट प्रेसिपिटेट निकलता है, लेकिन वो शेकिंग के बाद क्लाउडी हो जाता है, और EDTA और क्लोरेक्स क्लाउडी ब्लू हो जाता है, ठीक है। अब देखो कभी कभार क्या होता है, आपने एक इरिगेशन एजेंट यूज किया, बाद में दूसरे यूज करना है, तो बीच में आपको सलाइन यूज करना पड़ेगा दूसरे वाले को निकालने के लिए, ठीक है। ये हमने जो डेवलपर यूज करते हैं ना रेडियोग्राफ को डेवलप करने के लिए, पहले डेवलपर में डाला, फिर वाटर आता है ताकि वो सब डेवलपर वाला जो पोर्शन निकल जाए, फिर आपको फिक्सर करना है अप्लाई, फिर यहाँ पे सेम है, दो इरिगेशन के बीच सलाइन को आपको यूज करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। फिर आप कैसे इम्प्रूव करोगे एफिकेसी, एनो सोडियम हाइपोक्लोराइड कैसे उसकी एफिकेसी, उसका पोटेंशियल कैसे बढ़ाओगे, तो आपको सिरिंज को वार्म कर देना है, ठीक है। ये सब होता है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं, बहुत सारे डेंटिस्ट ऐसे करते हैं, याद रखना। रेडीमेड नहीं यूज करना है तो ब्लीचिंग पाउडर लेना है, उसको मिक्स कर देना है वाटर के अंदर, फिर उसको वार्म करना है, ऐसे भी करते हैं। और वार्म वाटर के अंदर उसको मिक्स कर देना है ब्लीचिंग पाउडर को, ये भी कर सकते हैं, तब जाके वो अपना वो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 5% वाला, ठीक है। अब कोई भी RCT के टाइम जब फाइनल इरिगेशन करते हो तो ये आपको खास याद रखना है, पहले सोडियम हाइपोक्लोराइड, फिर सलाइन, फिर EDTA, फिर सलाइन, ठीक है। लास्ट में हमेशा सलाइन आता है। अगर लास्ट में आप यूज करोगे सोडियम हाइपोक्लोराइड तो यहाँ पे आएगा कि वो डेंटिन को इरोड करता है, ठीक है। याद रखना, अभी बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि सोडियम हाइपोक्लोराइड पहले यूज करते हैं, लास्ट में क्लोरहेक्सिडिन यूज करते हैं, बट ऑल दिस बुकिश और प्रैक्टिकल अप्रोच बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। अब रूट कैनाल प्रिपरेशन के टाइम कौन कौन से एक्सीडेंट होते हैं, एक तो वर्किंग लेंथ का लॉस हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है, क्योंकि आपने ठीक से एक्सेस के एपिकल कंस्ट्रक्शन तक गए नहीं, कैनाल ब्लॉक है, कैल्सिफाइड है, लेज फॉर्म हो गया है, ठीक है। ब्रोकन इंस्ट्रूमेंट है अंदर, तो आप ठीक से वर्किंग लेंथ नहीं ले सकते। ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन, उसमें क्या है कि आपने जो वर्किंग लेंथ थी उससे ज्यादा फाइल को जाने दिया है, तो ज्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इंजरी हो गई पेरिएपिकल रीजन में, ठीक है। ओवर प्रिपरेशन, आप कैनाल थोड़ी थिन है लेकिन आपने बहुत बड़ा वाइड कर दिया, और फिर आपको ये दिक्कत अभी आ रही है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने प्रॉपर सीक्वेंस यूज नहीं की,
पहले आपको 6 नंबर की फाइल से करना है, 8 है, 10 है, और आपने सीधे ही 50 नंबर की फाइल से चालू कर दिया लोअर मोलार्स में, तो ये ओवर प्रिपरेशन का फंडा आएगा वहां पे। लेज, लेज में क्या होता है, कभी कभार आप जो कर्व कैनाल्स होती है ना, देखो यहाँ पे, तो आप कर्व कैनाल जो फाइल को इंसर्ट करने से पहले कर्व करना चाहिए, लेकिन आपने की नहीं थी, इसलिए यहाँ पे एपेकल स्टफ बन गया। रियली यहाँ पे हमको थोड़ा कर्वेचर में चाहिए था, लेकिन वो सीधा गई क्योंकि आपने कर्व नहीं किया। ठीक है, तो ये कभी कभार क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी काम आता है। तो आपको एमसीक्यू ऐसे पूछा जा सकता है कि मेन रीजन फॉर लेज फॉर्मेशन इज, तो क्या आएगा, अनेबल टू बेंड और कर्व द फाइल। ठीक है, ये उसका पॉइंट आएगा, याद रहे। फिर आता है एल्बो। ठीक है, क्या होगा, यू प्री कर्व्ड द फाइल, आपने ऐसे कर्व करनी थी तो आपने ऐसे कर दी, तो ये टूथ का फाइल यहाँ पे एक्सेस ओपनिंग या एक्सेस यहाँ तक चला जाएगा, तो गलत डायरेक्शन में आपने प्री कर्व किया, इसलिए एल्बो बन गया। ठीक है, फिर एपिकल ट्रांसपोर्टेशन, एपेक्स आपने दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर दिया। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि आपके दो एपेक्स है। फिर एपिकल परफोरेशन, बाहर निकाल दिया आपने फाइल। फिर जिपिंग, जिपिंग में क्या होता है, आइडियली यूर एपेक्स इट शुड बी नैरो, या नैरो होना चाहिए, तो आपने क्या किया, वाइड कर दिया। फिर यहाँ पे आपको एमटीए या कुछ एपेक्सोजेनेसिस या एपेक्सिफिकेशन वाला फंडा यूज करना पड़ेगा। ऐसे तो कोई करता नहीं है, ये तो मैं खाली बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अब कैसे रूट कैनाल के अंदर मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो पेशेंस रखिए, प्रॉपर एक्सरे इंग्रेशन वाला होना चाहिए, फाइल्स अच्छी होनी चाहिए, अच्छी मतलब नई वाली, किसी पीटी फाइल नहीं, आपने 10 पेशेंट में वही फाइल यूज की तो 11 में दिक्कत आएगी। फिर लेंथ को चेक करना है, डिस्कार्ड फाइल्स जो खराब है डिस्कार्ड कर देना है, जो भी पिछला वाला रिस्टोरेशन है उसको आपको निकाल देना है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। फिर ऑब्जर्वेशन, आपको ठीक से ऑब्जर्वेशन करना है। मास्टर कौन शॉर्ट है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, रीआरसीटी जैसा बीएमपी करना है, ताकि आपका मास्टर कौन प्रॉपरली डेप्थ तक जाए, वर्किंग लेंथ तक, और आप ऑब्जर्वेशन कर सको। मास्टर कौन गोज बियॉन्ड द एपेक्स, तो क्या करना है, आप लार्जर कौन यूज कर सकते हो। ये प्रैक्टिकल थोड़ी चीजें है कि आपको एसओएस डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर आता है एक्सीडेंट सीन ऑब्जर्वेशन। ये नोट्स हम आपको दी हुई है, तो आप आराम से जो भी चीज हम इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आपको थोड़ा पढ़ लेना है। ऑब्जर्वेशन में क्या है, कभी कभार अंडर फीलिंग, शॉर्ट फीलिंग, ओवर कंडेंसेशन, ओवर एक्सटेंशन, ओवर फीलिंग हो सकता है। ठीक है, इतने सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ सकता है।
क्यों आ सकता है कि आप कौन कौन सी कंडीशन में क्या क्या ध्यान रखोगे। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर इंटरव्यू ऑल्सो। ठीक है, ये चालू करने से पहले आपको कोई डाउट हो तो हमको कमेंट करिए, हम आपको डाउट सॉल्व कराते हैं, फिर ये चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा प्यारा वाल्वुलर हार्ट डिसीज। ठीक है, हार्ट में जो वाल्व होता है उसमें डिसीज होता है। ये क्वेश्चन शायद कॉमन ही होता है। ठीक है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। हार्ट के क्वेश्चंस आते हैं कभी कभार एग्जाम में। क्या प्रोफाइलेक्सिस करोगे, आगे हम प्रोफाइलेक्सिस का भी बताएंगे आपको। एंटीबायोटिक्स में क्या क्या रोल आता है प्रोफाइलेक्सिस का, ये सब चीजें आपको बताएंगे। तो अभी एंडोडोंटिक्स में आपको क्या ध्यान रखना है वाल्वुलर हार्ट डिसीज में। तो आपको एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस देना है। ये अभी ये टॉपिक पूरा होने के बाद ही हम आपको समझाएंगे कि पेनिसिलिन देना पड़ेगा, उससे अगर एलर्जी है तो क्लिंडामाइसिन देना पड़ेगा। ये सब आपको हम बताएंगे यही लेक्चर में। ठीक है, थोड़ी देर के बाद। अभी तक के लिए तो खाली यही रखिए याद कि आपको एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस देना है। वो क्या होता है, जब ऐसे पेशेंट आपके क्लिनिक में आते हैं तो आपको आरसीटी से पहले एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस चालू कर देना है पेशेंट को। फिर वही एंटीबायोटिक कवरेज के अंदर आपको आरसीटी करना है और पूरा होने के बाद आपको एंटीबायोटिक्स बंद करनी है। ठीक है, तो ये टाइम के अंदर कोई भी बैक्टीरिया होता है वो आगे जाके हार्ट को रिस्क नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, इसलिए हम प्रोफाइलेक्सिस यूज करते हैं। हाइपरटेंशन में क्या करना है ध्यान रखना है। एक तो एलएन ही देना है, एपिनेफ्रिन वाला। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि आपको कभी कभार एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी दे सकते हो। और पेशेंट को एक ये भी ध्यान रखना है कि स्ट्रेस और एंजाइटी ना आए, इसलिए आपको कंसोल करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बना बताना है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन है पेशेंट में और उसको आरसीटी करवाना है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद आपको कम से कम 6 महीने तक आरसीटी को पोस्टपोन करना है, एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपको छोटी अपॉइंटमेंट 5 मिनट 10 मिनट तक आप दे सकते हो। ठीक है, और यू हैव टू यूज एलए विदाउट कंस्ट्रिक्टर। लोकल एनेस्थीसिया से आपको प्लेन यूज करना है। स्ट्रेस एंजाइटी को कंट्रोल करना है। और अगर पेशेंट में पेस मेकर है तो आपको आपका इक्विपमेंट एपेक्स लोकेटर नहीं यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉमन बहुत सारी चीजों में एक ही चीज आ रही है, एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस। तो अभी हम वहां ही शिफ्ट हो जाते हैं। अभी आपको ये अपनी तरह से वो कर लेना है, रीनल डिसीज में क्या ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हीमोफीलिया में क्या करना है। हीमोफीलिया में आपको एस्पिरिन नहीं देना है और ऐसे चीज नहीं देनी है जो मेडिकेशंस लिवर में मेटाबोलाइज हो। ये हमारा जो लोकल एनेस्थीसिया होता है ना, एमाइड टाइप का, वो लीवर में मेटाबोलाइज होता है। तो आपको एमसीक्यूज ऐसे आ सकते हैं कि ये पेशेंट विद सिरोसिस ऑफ लीवर, वो आपके पास दांत निकालने के लिए आता है, तो आप क्या ध्यान रखोगे। तो आपको एमाइड टाइप का जो एल है ना वो आपको नहीं देना है, याद रहे। ठीक है, फॉक्सीट्रीटर में प्रॉब्लम आ जाता है। फिर डायबिटीज में क्या आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो तो पेशेंट को समझाए कि इन्फेक्शन के चांस है, हीलिंग नहीं हो सकता है। आरबीएस कंट्रोल में तो भी आपको ट्रीटमेंट करना है। बिफोर अपॉइंटमेंट आपको ग्लूकोज का मॉनिटरिंग करना है। पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग में अपॉइंटमेंट देना है और ग्लूकोज का सोर्स रखना है आपके साथ।
ठीक है। अभी तो कोई भी पेशेंट सिंकोप में जाए तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज वाला ड्रिंक दे देते हैं या फिर ओआरएस दे देते हैं। ठीक है। फिर प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपको ओनली इमरजेंसीज इन थर्ड ट्राइमेस्टर एंड अवॉइड सपाइन पोजीशन, आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर ही सब ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है। थर्ड के अंदर खाली इमरजेंसीज को हैंडल करना है और सपाइन पोजीशन अवॉइड करना है। ठीक है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन आएगी, याद रहे। ठीक है। अब यहाँ तक हमने जो पढ़ा और आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आरसीटी कब कर सकते हैं या नहीं, कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, ये चार है। एक तो आप एपेकल फोरामेन तक एक्सेस है उसका पहुंच सकते हो कि नहीं, कब कब नहीं पहुंच सकते, कैल्सिफाइड कैनाल, कर्व्ड कैनाल्स, या वो आता नहीं। ठीक है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ टूथ, फॉर एग्जांपल टूथ इज हैविंग अ मोर इम्पोर्टेंस। ठीक है। वो मोबाइल मोबाइल नहीं है, कभी कभार एबटमेंट में काम आता है, और कभी कभार वो कॉर्नर है, कभी कभार वो चूइंग में मेन टूथ है, तब जाके आपको बचाना पड़ेगा। पेशेंट की जनरल हेल्थ, पेशेंट की उम्र 80 ईयर्स है और वो बोलता है कि दांत में पेन है, तो आप आरसीटी नहीं करोगे क्योंकि उसकी लॉन्जेविटी बहुत ही कम है। टूथ रिस्टोरेबिलिटी, टूथ अगर रिस्टोर हो जाता है विदाउट आरसीटी देन यू कैन गो फॉर प्रॉपर रिस्टोरेशन। आरसीटी करने के बाद भी टूथ को रिस्टोर तो करना पड़ेगा ना, टूथ का क्राउन भी बनाना पड़ेगा, तो वो अगर हेक्टिक प्रोसीजर है और इजी है तो ही आपको ये आगे बढ़ना है। ठीक है। तो ये आरसीटी कब करोगे या कब नहीं, ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है। अब आता है एंडोडोंटिक इमरजेंसीज, कौन कौन सी इमरजेंसीज आती हैं जो आपको एंडो में ध्यान रखना होता है। ठीक है। तो पहले आएगा एक्यूट पल्पाइटिस, ये सब आपको क्लिनिक में फेस होगा कंडीशन। तो आप क्या करोगे, पहले एलए दोगे, फिर आपको ठीक से देखना है, पेन चेक करोगे, टूथ वाइटल है कि नहीं, रेडियोग्राफ है, कैरीज है कि नहीं, इसको सबको ध्यान में रखकर आपको पल्प को एक्सट्रिपेट करना है और ड्रेसिंग कर देना है। ठीक है। ऊपर का पल्प खराब है तो पल्पोटोमी, नीचे का है तो आपको आरसीटी भी कर सकते हो। ठीक है। फिर एक्यूट पल्पाइटिस विद एपिकल पेरियोडोंटाइटिस, मतलब नीचे वाला जो रीजन है वहां पे भी पहुंच गया है हमारा डिसऑर्डर। ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं, आपको आरसीटी कर सकते हो। ठीक है। ये सब चीजें कॉमन अब आ गई है। पल्प नेक्रोसिस, तो उसमें भी आपको आरसीटी कर देना है। ठीक है। और अगर नॉन डिस्टर्बेबल टूथ है तो आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर देना है। बट यहाँ पे ये जो टॉपिक है ना वो इमरजेंसी का टॉपिक है। ये लोग क्या बता रहे हैं कि जो भी पल्प है इमरजेंसी में आता है पेशेंट, तो आप क्या आरसीटी करोगे, यू शुड नॉट स्टार्ट आरसीटी, तो यू गो फॉर पल्प एक्सटिर्पेशन और यू अप्लाई प्रॉपर इंट्राकैनाल ड्रेसिंग। हीलिंग वाला जो होता है ना, जिंक ऑक्साइड होता है, टेट्रासाइक्लिन वाला होता है, बहुत सारे नए नए अभी रेड मिक्स पेस्ट आ गया है, तो ऐसे ऐसे करके आप अलग अलग पेस्ट यूज कर सकते हो। ठीक है। फिर एक्यूट एपिकल एब्सेस, तो देखिए जितने भी एमसीक्यूज है आपकी बुक में, एब्सेस की फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इंसिजन एंड ड्रेनेज, याद रहे। ठीक है। एब्सेस का ट्रीटमेंट यही आएगा, कभी भी दूसरा मत लिखना, इंसिजन और ड्रेनेज। फिर आपको क्या करना है, एंटीबायोटिक्स का प्रोफाइलेक्सिस देना है। ठीक है। डिफ्यूज स्वेलिंग, स्वेलिंग है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि एब्सेस है कि नहीं, एब्सेस है तो इंसिजन ड्रेनेज करोगे, फिर आपको एंटीबायोटिक्स का कवरेज देना है। ठीक है। अब अभी हमने जो बताया था ना प्रोफाइलेक्सिस या एंटीबायोटिक कौन कौन सा यूज करना है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। एंडोडोनिक्स में पेनिसिलिन वीके, ये वीके का मतलब क्या है, किसी को पता हो तो मुझे बताइए। ठीक है।
वरना मैं आपको बताता हूँ। कभी कभार एमसीक्यू में ये भी आता है कि व्हाट इज वीके इन पेनिसिलिन, वीके नहीं पता है तो बोलना नो डोंट नो, तो हम आगे वो समझाएंगे आपको। पेनिसिलिन जब डिस्कवर किया ना, ठीक है, तब 1, 2, 3 और 4 रोमन न्यूमेरिकल्स में ये नंबर दिया हुआ था, ठीक है। अब आपको यही लगेगा कि पेनिसिलिन वी मतलब पेनिसिलिन पांचवा है, नहीं है। वो वी का मतलब वर्ट्रैलिक है, ठीक है। ये वर्ट्रैलिक का मतलब क्या है कि जर्मन लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंशियल चीज होती है, आपको सीक्रेट रखना है, ठीक है। तो पेनिसिलिन वी का मतलब है वर्ट्रोलिक, और के मतलब यहाँ पे पोटेशियम की सॉल्ट ऐड की हुई है, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। पेनिसिलिन जी मतलब क्या है? पेनिसिलिन जी मतलब बेंजाइल पेनिसिलिन, ठीक है। बी मतलब फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। बेंजाइल पेनिसिलिन बनाने के लिए क्या होगा? फिनाइल एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, यहाँ पे फिनॉक्सी एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ फिनाइल ग्रुप, यहाँ फिनॉक्सी, इसलिए यहाँ पे फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन ग्रुप है। तो इतना डिफरेंशिएशन भी आपको आना चाहिए, याद रखें, ठीक है। तो ये इतना नॉलेज होना चाहिए, आप एमसीक्यू के एग्जाम में जाते हो ना तब, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछ लेंगे। व्हाट इज पेनिसिलिन वी, वी का मतलब क्या है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग लिखेंगे कि ये रोमन नंबर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो वर्ड है, ये जर्मन लैंग्वेज में कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है। किसने दिया था पेनिसिलिन? हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? प्लीज गिव द साइंटिस्ट नेम। नहीं पता है तो बोलो डोंट नो, तो हम बताएंगे। पता है तो अच्छी बात है। पेनिसिलिन किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया हुआ है? ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में कभी कभार आ सकता है। नहीं है उसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। कोई बात नहीं, अच्छा वो आपने बताया, तभी जाके आपको पता चलेगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। इसलिए तो बोल रहे हैं कि जितने भी साइंटिस्ट आते हैं ना, उनको एक जगह लिख दो सब साइंटिस्ट के नाम, तब जाके आपकी नोट्स बनेगी, ठीक है। अब पेनिसिलिन का डोज कितना है? 1 to 2 ग्राम देना है प्रोफाइलेक्सिस में, ठीक है। और फिर 500 मिलीग्राम आप दे सकते हो। फिर पेनिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल ये भी आप दे सकते हो। ये एनफ जब होता है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिविटिस, ये दोनों में काम आता है। अब पेशेंट एमोक्सिसिलिन, इट इज पेनिसिलिन, उससे एलर्जिक है, तो आपको क्लिंडामाइसिन देना है, 300 मिलीग्राम दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो शुरुआत में ज्यादा आप देते हैं,
इसको हम देते हैं, बोलते हैं लोडिंग डोज। शुरुआत में थोड़ा अच्छा डोज दे दो, फिर थोड़ा टेपर करो। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए एंडोडोन्टिक्स में हम कौन कौन से एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। फिर एनाल्जेसिक्स, तो एस्पिरिन कब देते हैं? ठीक है, ब्रूफेन में दे सकते हैं माइल्ड पेन में, मॉडरेट में ब्रूफेन और उसके साथ पैरासीटामोल भी ऐड कर सकते हैं, और सीवियर में डोज आपको बढ़ा देना है। और जब एस्पिरिन वाली ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है तब आपको पीसीएम देना है, एसिटामिनोफेन मतलब पैरासीटामोल। ठीक है, फिर आपको कोडिन भी देना है और या ऑक्सीकोडोन देना है। ठीक है, तो याद रहे पैरासीटामोल आप दोनों कंडीशन में दे सकते हो। अब पैरासीटामोल एक ऐसी दवा है जो लगभग कोई भी पेशेंट में आप दे सकते हो, खाली एक ही पेशेंट में नहीं दे सकते हो, लीवर वाले पेशेंट में। याद रहे, ठीक है, अदरवाइज पैरासीटामोल का कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंगल विजिट एंडोडोन्टिक्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। क्या क्या एडवांटेज है? अच्छा है, पेशेंट को टाइम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, पेशेंट को ये होगा और मनी भी मिलते डॉक्टर को। ठीक है, डिसएडवांटेजेस, कभी कभार हम जल्दबाजी में भूल कर बैठते हैं, फटीग हो जाता है। फिर दूसरी बार दिक्कत आता है तो पेशेंट बोलता है क्यों आपने ये किया, और हर एक केस में पॉसिबल नहीं है। कभी कभार ऐसी कैनाल होती है जहाँ पे पस ड्रेन होता है, ऐसे में हम प्लेस नहीं कर सकते। और मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज ये है कि आप जब सिंगल विजिट करते हो तब आप इंट्रा कैनल मेडिकामेंट्स, ठीक है, नहीं कर सकते हो, नहीं दे सकते हो आप। आपको खाली सोडियम हाइपोक्लोराइड की जो भी इफेक्ट है उस पर आपको डिपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखिए, इंटरव्यू में आपको कोई भी आंसर जो होता है ना वो टू द पॉइंट, मतलब टू द पॉइंट देना होता है लेकिन शॉर्ट नहीं देना है। यू हैव टू इलाबोरेट विथ योर कंटेंट एंड विथ योर कॉन्फिडेंस कि सर मुझे ये इतना आता है और ये इतना रिसर्च है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे आपको बोलना है। अब सिंगल वो जो होता है विजिट, कब कब इंडिकेशंस है? तो वाइटल टूथ होता है, ठीक है, कभी कभार पेशेंट हैंडीकैप्ड है तो वो बार बार नहीं आ सकता है। मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है जिसको एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस आना देना है, तो वो एक बार प्रोफाइलेक्सिस देगा लेगा तो आपको आरसीटी फिर कर देना है। पेशेंट का आगे का दांत है उसमें आरसीटी करना है तो आपको बार बार उसको नहीं बुलाना है, वो फ्रैक्चर भी हो सकता है, तब भी आपको सिंगल विजिट में कर देना है। ठीक है, कभी कभार पेशेंट को सिलेशन में आरसीटी करनी है तो आपको सिंगल विजिट में वो पूरी कर देनी है। ठीक है, फिर एप्रीहेंसिव बट कोऑपरेटिव पेशेंट्स, कभी कभार पेशेंट को क्या होता है एक ही बार वो ट्रीटमेंट के लिए आएगा, बार बार नहीं आएगा, तो ऐसे केस में आप सिंगल विजिट कर सकते हो। फिर आता है कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कब आप सिंगल विजिट नहीं कर सकते हो? तो एब्सेस, ठीक है, टेंडेटिव परकशन है, टूथ इज नॉन वाइटल, कैल्सिफाइड कैनाल से, पेशेंट का माउथ ओपनिंग लिमिटेड है, ये सारे केसेस में आप सिंगल विजिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब कौन कौन से नए नए एडवांसमेंट आए एंडोडोन्टिक्स में? पहले तो आता है पल्स वाइटलिटी टेस्ट। तो देखिए नए नए इंस्ट्रूमेंट, पल्स ऑक्सीमेट्री, ठीक है, तो पल्स ऑक्सीमेट्री क्या करता है? ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ ब्लड, वो मेजर करता है। ठीक है, फिर सीबीसीटी, कॉन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये इम्प्लांट करने से पहले हम सीबीसीटी करवाते हैं ताकि स्लाइस से हमको पता चले कहाँ तक वो एक्सटेंशन है, कहाँ तक वो नहीं है। ठीक है, तो ये अभी तो आरसीटी करने के बाद एंडोडोंटिस्ट ये भी यूज करते हैं, बट ये
ज्यादातर अच्छी तरह सिटी जहाँ होता है, जहाँ पेशेंट एफोर्ड कर सकता है, वहां पे ये हम कर सकते हैं। ठीक है। फिर एडवांसमेंट्स इन रूट कैनाल प्रिपरेशन, तो नए नए बर्ड्स आए हैं, कॉनिकल कार्बाइड बर्ड्स, अल्ट्रासोनिक टिप्स आई है, वो आपको क्या करेगा, कैल्सिफाइड कैनाल्स में काम आएगी। फिर फाइल रिमूवल किट आई है, TFRK, फाइल अगर ब्रेक हो गई है वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है। रूट कैनाल इरिगेशन में कौन कौन सी नई चीज आई है, ऐसे सिरिंजेस आ गए जो आप अंदर डालोगे कैनाल के अंदर, तब साइड साइड में से वेंट निकलेगा। ठीक है, नीचे नहीं जाएगा। इसका फायदा क्या है कि वो साइड में ही इरिगेट करेगा, ये आपको याद रखना है। तो कौन कौन सी टिप आई है, नेवी टिप, मोनोजेट, ठीक है, मैनुअल डायनेमिक भी होता है, याद रखिए। फिर अब कौन कौन से मशीन आ गए हैं, तो रोटरी वाले ब्रशेस आ गए। फिर कॉन्टैक्ट ई है जो आप इरिगेट करने में हेल्प करता है रोटरी इंस्ट्रूमेंटेशन के टाइम। सोनिक डिवाइसेस है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक गन जो बोलते हैं ना, वो डिवाइसेस, अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस आपको कहाँ काम आएंगे, इरिगेट में काम आएंगे, फिर कैल्सिफाइड वॉल्स में काम आएंगे, ये सब काम आपको आएंगे। एंडोवैक्स सिस्टम, ये सब नए नए एडवांसमेंट्स है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कौन कौन से सिस्टम में क्या क्या फायदा है। ठीक है। ये एंडोवैक का क्या फायदा है, ये श्योरिटी देता है आपको कि आपका जो इरिगेंट है ना वो नीचे एपेक्स तक पहुंच गया है। फिर रिंग्स एंडो सिस्टम, ठीक है, वो भी यही आपको बताता है कि एपेक्स तक वो आपका इरिगेशन पहुंचाए कि नहीं। फिर हमारा प्यारा लेजर्स, लेजर्स का एक MCQ तो होता ही होता है कोई भी एग्जाम में, कौन सा लेजर कहाँ यूज होता है, कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कहाँ यूज होते हैं, ये Y80 वाले YG वाले कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए लेजर का रोल स्मीयर लेयर और डेंटल टिप्स में भी काम आता है, बट दे आर नॉट एज इफेक्टिव एज सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है। अब BMP में क्लिनिक एंड शेपिंग में कौन कौन से एडवांसमेंट्स आए, कौन कौन से न्यूअर इंस्ट्रूमेंट्स आए, तो रोटरी फाइल्स आ गई, आपको पता ही होगा अभी रोटरी से ही सब लोग RCT करते हैं। ठीक है। अब नाइट्रा एलोय ना, रोटरी फाइल्स नाइट्रा एलोय से बनती होती है, उसकी थोड़ी प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक मार्टेन साइट होता है, वो एट कोल्ड टेम्परेचर में देखने को मिलता है और फैटिग रेजिस्टेंस उसकी अच्छी होती है। ऑस्टेंटाइट में क्या होता है, वो हॉट टेम्परेचर पर होता है, शेप मेमोरी अच्छी होती है, ग्रेटर कटिंग एफिशिएंसी होती है, एज फिdelity और टॉर्क रेजिस्टेंस। ठीक है, दो फॉर्म्स उसके होते हैं। अब मार्टेन साइट से ऑस्टेंटाइट में ये कन्वर्ट होता है, जब आप रोटरी फाइल इंसर्ट करते हो तब वो मार्टेन साइट फॉर्म में होती है, बीच में एक फॉर्म आता है आर फेज, और लास्ट में वो ऑस्टेनाइट फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। फिर XP एंडो शेपर फाइल, अलग अलग टाइप की शेपिंग फाइल्स भी अवेलेबल है। और अभी आई गई है सेल्फ एडजस्टिंग फाइल। अभी तो आप अगर रोटरी फाइल्स तो आपने एक दो ही देखी होगी, बहुत सारी फाइल्स आ गई है। ठीक है, पाथ शेपिंग होती है, EDM फाइल्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज वाली, तो बहुत सारी फाइल्स अभी आ गई है। ठीक है। फिर रोटरी एंडोडोंटिक्स में गेज क्लीजन ड्रिल, हमने आपको बताया ना कि ये ओरिफिस को ओपन करने के लिए काम आता है। ठीक है।
नाइटाई रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्या क्या सिमिलरिटी है? वो हीट ट्रीटेड एलॉयज है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें रेजिस्टेंस होता है साइक्लिक फटीग का, इसलिए वो जल्दी से ब्रेक नहीं होते। और वो प्राउन डाउन टेक्निक में यूज कर सकते हैं उसकी नॉन कटिंग टिप से। आगे की जो टिप होती है ना वो नॉन कटिंग होती है। ठीक है। अब मैनुअल फाइल्स और रोटरी फाइल्स में डिफरेंस क्या है? तो देखना है कि यहाँ पे कांस्टेंट टेपर है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे फाइल से एक टेपर कांस्टेंट होता है, यहाँ होता भी है और अलग अलग टेपर्स भी होते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंस बहुत ही थोड़ा समझने वाला है अगर आपको एंडो में इंटरेस्ट है, लेकिन ऐसे कोई एमसीक्यूज में आता नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रोटरी इंस्ट्रूमेंट मोशंस। ठीक है। अब आप फाइल से करोगे तो फुल रोटेशन आएगा और रेसिप्रोकेशन आएगा, और ऑपरेटर से क्या आएगा? बैक मोशन आएगा और ब्रश मोशन आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये उसका क्या मतलब हुआ? फाइल अंदर घूमेगी, रोटेशन का मतलब। और रेसिप्रोकेशन, फाइल का यही काम है, आगे घूमती है और पीछे घूमती है। ऑपरेटर का काम क्या है? अप डाउन मूवमेंट और ब्रश, साइड वॉल को ब्रश करना है, शेव करना है। ठीक है। अब व्हाई इट इज बेटर टू यूज रोटरी फाइल्स? तो फास्टर प्रिपरेशन, अच्छी तरह से वो शेप देता है, कम चांसेस है परफोरेशंस के और भी दिक्कत नहीं होती, और अच्छी तरह से प्रिपरेशन होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? फ्रैक्चर के चांस ज़्यादा होते हैं, कभी कभार डेंटिंग के अंदर माइक्रो क्रैक्स, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट होता है, मैकेनिकल वाला होता है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है कितना वो प्रिपेयर कर देगा कैनाल को। फिर कांट बी यूज्ड इन कर्व्ड नैरो कैनाल्स। आप एक बार यूज करके देखना, वो टूट जाएगी, फाइल सेपरेट हो जाएगी, और वो ओवल कैनाल्स को क्लीन नहीं करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब प्रो टेपर की सिस्टम होती है फुल रोटेशन वाली, और वेव वन की सिस्टम है रेसिप्रोकेटिंग। खाली आपको नाम याद रखना है, ये कोई डिफरेंस कोई आपको लिए काम का है नहीं। ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स हम थोड़ी समझाएंगे, अलग अलग कौन कौन सी होती है। थोड़ा रिवीजन ही है क्योंकि हमने कल ही किया था। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। तो चालू करते हैं ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स। पहले तो हमारी लेटरल कंपैक्शन जो हमने सीखी थी जब हम आरसीटी सीख रहे थे। ठीक है, उसमें कुछ नहीं, टक बैक होना चाहिए मास्टर कॉन का, और आजू बाजू जो स्पेस होती है वहां पे एसेसरी कॉन्स हम डालते हैं। कैसे? स्प्रेडर से पहले स्पेस बनाते हैं और फिर आपको वो लेटरल कॉम्पैक्शन करना है स्प्रेडर से, और पहले मास्टर कॉन आएगा, उसके आजू बाजू सब आएगी एसेसरी कॉन्स। ठीक है। वॉर्म वर्टिकल में क्या है? उसका दूसरा नाम है शिल्डर्स टेक्निक। और बहुत सारी इंटेलिजेंट लोग ऐसे भी होते हैं, खाली आपको ये पूछेंगे WCWVC वॉर्म वर्टिकल कॉम्पैक्शन, उसमें क्या होता है ये आपको पूछेंगे। ठीक है, तो आपको ये आप खाली याद रखना है कि उसमें वॉर्म करके आपको गट्टा पर्चा प्लेस करना है। ठीक है, और कुछ नहीं है, वही आपको याद रखना है। और टच एंड हीट साइब्रॉन एंडो एक
इलेक्ट्रिक हीट कैरियर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन सा? इलेक्ट्रिकल हीट कैरियर है, वो आपको वार्म कंपैक्शन में काम आएगा। अब कंटिन्यूअस वेव, ठीक है, शिल्डर्स टेक्निक, तो वो पहले शिल्डर था, फिर अब कंटिन्यूअस वेव टेक्निक आ गई, तो उसमें भी थोड़ा अलग ही होगा। उसमें वार्म वर्टिकल कंडेंसेशन करते हैं, बट हाथ से नहीं करते, सिस्टम बी से करते हैं, ठीक है। कुछ अलग टेक्निक उसमें यूज करते होंगे, बाइंडिंग पॉइंट भी होगा, उसके एडवांटेजेस भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। पहले आपको मास्टर कॉन को कट कर देना है, फिर उसमें आपको हीट ड्यूटी अप्लाई करनी है, रीड द प्लगर, ऐसे करके आपको ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। तो आप ये, अगर आपको डीप में जाना है तो आपको ये पढ़ लेना है। बाकी यहाँ तक तो जहाँ एमसीक्यू का क्वेश्चन होता है ना, तो वो यही इंपॉर्टेंट होता है कि वार्म वाला है तो दो है, ठीक है, शिड्रस टेक्निक है, कंटिन्यूस वेव है, उसमें क्या डिफरेंस है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वार्म लेटरल कंडेंसेशन, जो हम लेटरली कॉम्पैक्ट करते हैं, ये वही टेक्निक है, लेकिन उसमें आपको लेटरल, एक जो स्प्रेडर होगा वो हीट करके लेटरल टू द कॉन्स अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये वार्म लेटरल कॉम्पैक्शन हुआ, ठीक है। तो एक एंडोटेक आता है और एनेक आता है, दो चीज आपको वार्म लेटरल कंडेंसेशन में काम आएगी, ठीक है। अब उसके इंजेक्टेबल गट्टा पर्चा, ठीक है, अब लेटेस्ट वाला इंजेक्टेबल गट्टा पर्चा है, तो ये उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, ऑप्चूरा है, अल्ट्राफिल है, ये सब लेटेस्ट एडवांसमेंट है, ठीक है। आपको इंजेक्टेबल गट्टा पर्चा का यूज करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपको एक डेफिनेट एपिकल स्टॉप चाहिए, तभी जाके आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्मोमैकेनिकल टेक्निक या मैक्स पेडेंट कॉम्पैक्शन, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, गट्टा पर्चा को वार्म करना है और थर्मल, ठीक है, थर्मल मतलब आपको गर्म कर देना है और फिर मैकेनिकली उसको पैक कर देना है, ये तो इजी है, ठीक है। और उसका जो कॉम्पैक्टर होता है ना, वो रिवर्स एच फाइल की तरह दिखता है, याद रखना। फिर आता है कैरियर बेस्ड टेक्निक, ठीक है। उसमें कुछ नहीं, सॉफ्ट कोर जैसा कुछ आता है, डेंस फील आता है, उसमें कुछ नहीं, एक कैरियर होता है, प्लास्टिक का, स्टील का, टाइटेनियम का, ये सब कैरियर्स है, ठीक है। उससे अंदर से गट्टा पर्चा जाएगा, वो कैरियर्स कोटेड होते हैं जीपी से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये गट्टा कोर जो है वो भी एक कैरियर ही है, जो कैरियर बेस्ड टेक्निक का ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर कीमोप्लास्टिसाइज्ड, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो जीपी को केमिकली सॉफ्ट करते हैं और बाइंड भी करते होंगे, तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हो ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। अब कौन कौन से केमिकल ऐसे हैं, तो एक आएगा क्लोरोफॉर्म, यूकैलिप्टॉल और हेलोथेन। एक क्लोरोफॉर्म को सॉल्वेंट है, क्लोरोफॉर्म को डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा एपिकल बैरियर, तो ये कुछ नहीं है, ये उसका क्वेश्चन है, एपेक्सोजेनेसिस और एपेक्सिफिकेशन, ठीक है। तो एपेक्सोजेनेसिस में आप क्या करते हो, टूथ वाइटल है और आप एमटीए या ऐसा कुछ मटेरियल यूज करते हो, ठीक है, जो वहां पे फिजियोलॉजिकल एपेक्स का फॉर्मेशन करेगा, रूट को कम करेगा और एपेक्स नैरो हो जाएगा, एपेकल कंस्ट्रक्शन बन जाएगा, तब जाके आप मास्टर कॉन से टक बैक ले सकते हो। और एपेक्सिफिकेशन में क्या है, क्योंकि टूथ नॉन वाइटल है, आप वो फिजियोलॉजिकल जो मैकेनिज्म है रूट फॉर्मेशन की, एपेक्स के क्लोजर की, वो आप नहीं ले सकते उसमें से, ठीक है, वो एडवांटेज नहीं ले सकते, तो आपको मैकेनिकली एक बैरियर
प्लेस कर देना है। ठीक है, एमटीए का जो मैकेनिकल बैरियर है ना वो यूज कर देना है। एपेक्स वहां पे एपेक्स पे लगा देना है। तो दिस विल एक्ट एज ए एपेकल स्टॉप एंड यू कैन गेट टक बैक। ठीक है, लेकिन एमटीए का जितने भी पेपर्स है ना अभी तक उसमें एक ही क्वेश्चन आया है। एक तो रेशियो आता है पाउडर लिक्विड का या वाटर पाउडर। दूसरा ये है कि उसका डिसएडवांटेज ये है कि लॉन्ग सेटिंग टाइम। अभी आप करोगे ना तो उसको एक दिन के बाद बुलाना पड़ेगा क्योंकि वो 5-6 कलाक को सेट होने में लगते हैं। ठीक है, तो ये आपको खास याद रहे कि एमटीए क्यों हम यूज नहीं करते हैं ज्यादा वक्त। एमटीए की प्रॉपर्टीज बढ़िया है, सब चीजें अच्छी है, लेकिन उसका सेटिंग टाइम लॉन्ग है। ठीक है, मैंने जिस बुक में पढ़ा था उसमें ये था कि उसको 4 to 5 आवर्स लगते हैं सेटिंग टाइम में। तो आपको दूसरे दिन ही पेशेंट को बुलाना पड़ेगा। फिर एंडो ट्रीटमेंट तो पूरी हो गई, अब उसमें रिस्टोरेशन कैसे कैसे करोगे। ठीक है, तो अभी तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि आप कंपोजिट से कर देते हो, फिर कोई क्राउन करता है, ये सब चीज़ों इम्पोर्टेंट रखती है। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड होता है, तो कौन कौन सा रिस्टोरेशन मटेरियल यूज करना है, क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर आपने ठीक से ऑब्जर्वेशन किया है तो अच्छा मटेरियल यूज कीजिए, जिरकोनिया रखिए, और खराब किया है तो आप खाली मेटल क्राउन दे दीजिए। प्री एग्जिस्टिंग एंडोस्टेटस, पहले एंडो की कंडीशन क्या थी। ठीक है, पेरिएपिकल चेंजेस क्या थे, उस हिसाब से आपको रिस्टोरेशन का टाइम और रिस्टोरेशन का मटेरियल डिसाइड करना है। लोकेशन ऑफ टूथ इन द माउथ, आगे का दांत है तो आपको ध्यान रखना है कि वो जल्दी से रिस्टोर करना पड़ेगा एस्थेटिक्स के लिए। पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया, डू यू नीड टू क्राउन, हर एक आरसीटी के बाद क्राउन की जरूरत है या नहीं। तो है, क्योंकि अभी डेंटिस्ट बने हैं तो बहुत सारे रुपये खर्च किए होंगे, उनको रुपये निकालने पड़ेंगे, तो क्राउन की जरूरत है। और अगर डेंटिस्ट ऐसे है कि नहीं नहीं हमको एथिकल जाना है, तो पेशेंट को समझाना है कि हर एक कंडीशन में क्राउन नहीं, मैं नहीं देता हूँ हर एक कंडीशन में क्राउन, मैं पहले कंपोजिट का एक कोर बिल्डअप देता हूँ जितने भी पेशेंट होते हैं, फिर वो कंपोजिट टूट जाता है निकल जाता है तब जाके हम क्राउन देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब पोस्ट एनकोर। ठीक है, पोस्ट एनकोर में बहुत सारे लोगों को डाउट था पोस्ट एनकोर क्या होता है क्या नहीं। तो अगर टूथ का जो क्राउन हाइट है वो कम होता है और रूट्स अच्छे हैं, ठीक है, क्राउन थोड़ा ही है, तो इसमें क्या होगा, उसमें क्राउन जो रिस्टोरेशन वाला होगा क्राउन वो रहेगा नहीं, क्योंकि हमको यहाँ तक तो हाइट चाहिए ना। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पोस्ट लगा देते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर क्राउन आ जाएगा। तो अगर वन पीस होता है वो 1 यूनिट होता है, जैसे कि पोस्ट और क्राउन वो एक यूनिट होता है, तो उसके बोलते हैं डोवेल क्राउन। ठीक है, फॉक्सिट रीडर में वापस दिक्कत आ गई। मैं आपको ये समझा रहा था कि ये हमारा एपेक्स है, थोड़ा ही क्राउन है, तो इस पर आप नया क्राउन नहीं बना सकते हो क्योंकि थोड़ी तो क्राउन की हाइट चाहिए ना। आप उस पर नया एफसीसी फुल कास्ट क्राउन नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कैनल होती है ना उसके अंदर थोड़ा यहाँ तक रखना है जीपी, ये पोस्ट आपका हो जाएगा और इसके साथ आपको एक क्राउन अटैच कर देना है। तो ये अगर पोस्ट और क्राउन वन पीस होते हैं या 1 यूनिट होता है तो उसको बोलते हैं डोवेल क्राउन।
ठीक है, याद रखना। डोवेल क्राउन का मतलब क्या है? ये वन पीस में होता है, ठीक है। और अगर वो, पहले आप क्या करोगे, एपेक्स के ऊपर आप एक पोस्ट लगा दोगे, उसके ऊपर थोड़ा क्राउन बना दोगे, और उसके ऊपर नया क्राउन आएगा, ये वाला, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोवेल और क्राउन। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में भी आपको ये डिफरेंस कभी कभार पूछ सकते हैं। याद रहा आपको? यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए। ठीक है। अब आता है एंडोक्राउन। ठीक है, वो रेडीमेड ही होता है कभी कभार। देखो यहाँ पे एंडो ट्रीटमेंट के बाद सीधा आपको एक क्राउन वहां पे लगा देना है। उसके भी इंडिकेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ठीक है, अब कॉन्ट्राइंडिकेशन का पे उस पर आपको फोकस करना है कि पल्प का जो चैम्बर है ना, वो लेस देन 3 मिलीमीटर डीप, ज्यादा डीप नहीं है। डीप होगा तभी हम ये यूज कर सकते हैं। फिर सर्वाइकल मार्जिन इज लेस देन 2 मिलीमीटर वाइड। ठीक है, सर्वाइकली उसकी विड्थ भी कम है। और क्लिनिकल क्राउन हाइट अच्छी है। ठीक है, अगर क्लिनिकल क्राउन मतलब पेशेंट का क्राउन ही अच्छा, इतना अच्छा है, तो आप क्यों रेडीमेड एंडोक्राउन दे रहे हो? उस पर आप एफसीसी लगा कर दे दीजिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एंडोक्राउन कैसे बनता है? ठीक है, आप ये लिंक पर जाकर भी देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा प्रिपरेशन करना है, उसके ऊपर रेडीमेड ये एंडोक्राउन बना सकते हो आप। अब आता है नैयर पोर। ये थोड़ा एडवांसमेंट है। कोर क्रिएटेड इनसाइड द पल्प चैम्बर एंड द कैनाल एंट्रेंस। अब देखो, यहाँ पे आरसीटी की है ना, तो ये लोग क्या करेंगे, ये यहाँ यहाँ कैनाल के अंदर भी कर देंगे, और ये पोर्शन रिस्टोर कर देंगे। तो यहाँ तक उसका एक्सटेंशन है। ठीक है, ये कोर का, तब जाके वो टिकेगा। ये आपको याद रखना है। बोलो ना, बोलो। નથી સુઈ ગયા, બોલો. નથી સુઈ ગયા, બોલો. 11 વાગે જશું અમે. હા હા, આવશું. હજી તો 10:15 થયા ને, હજી 1 કલાક પછી આવશું, હો ને. હા, રાખો. तो नैयर पोर का भी अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये डायग्राम से ही आपको पता होना चाहिए कि उसमें कैनाल में उसका एक्सटेंशन था। ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप आइडेंटिफाई करिए ये कौन सा पोर है। ठीक है, अब बहुत लोगों को फेरुल के बारे में दिक्कत थी। फेरुल क्या है, फेरुल कौन सा होता है? ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये, ठीक है, ये हमारा रूट है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जहाँ मार्जिन होती है ना, वहां पे 2 मिलीमीटर का गैप रख देते हैं, फिर यहाँ पे क्राउन रखते हैं, और यहाँ पे गैप। ठीक है, तो ये जो 2 मिलीमीटर का गैप है ना साइड में, वो बोलते हैं फेरुल। इससे क्या होगा, क्राउन उसका फिट से उसका अटैचमेंट होगा। ये मार्जिन का बड़ा भाई है फेरुल। ठीक है, जो टूथ प्रिपरेशन में मार्जिन रखते हैं ना, उससे थोड़ा 2 मिलीमीटर तक जाके हमको बनेगा हमारा क्या, फेरुल। ठीक है, और फेरुल का मेन पर्पस क्या है कि फोर्स को डायरेक्टली यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सिस पर फोर्स ट्रांसफर कर सकते हैं।
आप देख लो यहाँ पे 4 मिलीमीटर की लेंथ है, कोई कोई बुक में 3 मिलीमीटर लिखा होता है कि 3 मिलीमीटर मिनिमम गट्टा पर्चा रखना है, कोई लोग 6 मिलीमीटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 to 5 मिलीमीटर है, तो एक एग्जैक्टली कोई परफेक्ट क्राइटेरिया है नहीं। लेकिन हमने जब पढ़ा था तो 3 to 6 आप बोलो तो भी चलेगा, 4 to 5 भी बोलो तो भी पता चलेगा आपको। ठीक है, तो आपकी अगर एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ कंट्रोवर्सीज होती है तो इट्स बेटर कि आप लीव कर दो, और अगर आपको जाना है तो ये वाला क्वेश्चन 4 to 5 उसमें लिखना है। ठीक है, और पोस्ट का डायमीटर भी आपको ध्यान रखना है, इट शुड नॉट एक्सीड 1/3। ठीक है, वो 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, उतना आपको याद रखना है। पोस्ट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, पैरेलल होते हैं, टेपर होते हैं, पैरेलल टेपर। तो पोस्ट एंड कोर टॉपिक थोड़ा आपके लिए नया है, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इजीली समझाऊंगा। पोस्ट कुछ नहीं, जहाँ पे हमारे पास क्राउन की हाइट नहीं होती, ये खाली रूट पीस है, पेशेंट आया कि सर इस पर मुझे क्राउन करना है, तो आप क्या करोगे, इस पर आरसीटी कर दोगे, यहाँ पे थोड़ा गट्टा पर्चा रख दोगे इंटैक्ट, ये कैनाल को पहले गट्टा पर्चा से फिल कर देना है कंप्लीटली। ठीक है, फिर पेशेंट आता है ना, गट्टा पर्चा को आपको निकालना है, कितना, इतना। ठीक है, यहाँ तक 4 to 5 मिलीमीटर रखना है। फिर यहाँ पे जो स्पेस होती है कैनाल, उसमें आपको एक पोस्ट रख देना है। पोस्ट फाइबर के आते हैं, कस्टम मेड आते हैं, मेटल का आता है, एलॉय का आता है। ठीक है, ये पोस्ट का एडवांटेज क्या होगा, उसके ऊपर आप कुछ भी अटैच कर सकते हो, एबटमेंट बना सकते हो, उसके ऊपर आपको क्राउन लगा देना। ठीक है, ऐसे करके पोस्ट एंड कोर का थोड़ा फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी तो बहुत सारी अच्छी बात यह है कि फ्लोएबल कंपोजिट जो आता है ना, और फाइबर पोस्ट जो कंपोजिट का आता है वो यहाँ से आ जाएगा, इतना बार आएगा पोस्ट, इसके ऊपर आपको कंपोजिट का कोर बिल्डअप कर देना है। और अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो इसको कंपोजिट को प्रिपेयर करके उस पर नया क्राउन लगा देना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पोस्ट प्रिपरेशन के टाइम कौन कौन सी भूल होती है, एक तो एपिकल सील डिस्टर्ब होता है, परफोरेशन होता है, कैनाल स्पेस थोड़ी ज्यादा हो जाती है। वो क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि आपको पीजो रिमर यूज करना है। ठीक है, याद रखें पोस्ट एंड कोर में पीजो रिमर्स यूज होता है। फिर एक्सट्रूजन ऑफ ऑब्चुरेशन मटेरियल, कभी कभार आप पीजो रिमर यूज करते हो तो यहाँ से एक्सट्रूजन भी हो सकता है मटेरियल का, और हमारे पोस्ट प्रिपेयर करने के टाइम कभी कभार इंस्ट्रूमेंट भी सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। यहाँ पे देखिए प्रिपरेशन ऑफ कॉर्नल स्ट्रक्चर में फेरुल इफेक्ट आपको रखना है। ठीक है, तो फेरुल मैंने आपको बता दिया क्या होता है, फेरुल डायग्राम ड्रॉ करके। ठीक है, और फेरुल का इंपॉर्टेंस क्या है याद रखिए, इट कॉजेस वेजिंग इफेक्ट। ठीक है, आपका जो क्राउन होगा ना वो ठीक से वहां पे बैठ जाएगा। देखो ये हमने फेरुल का इफेक्ट दिया, ये वाला, तो यहाँ पे क्राउन ठीक से बैठ जाएगा, वेजिंग इफेक्ट आएगा, निकलेगा नहीं। और रूट को फ्रैक्चर होने से बचाएगा, क्योंकि आपके जो फोर्सेस है ना वो यहाँ पे ट्रांसफर होंगे साइड में और यहाँ पे। अगर ये नहीं करते हो तो डायरेक्टली पोस्ट पर आएगा और वो यहाँ से फ्रैक्चर हो जाएगा रूट। ठीक है, और देखो एपेकल सील कितनी होनी चाहिए पोस्ट एंड कोर में, तो यहाँ पे लिखा है 4 to 5 मिलीमीटर, कुछ बुक में लिखा है 3 मिलीमीटर, कुछ बुक में लिखा है 6 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये कोई परफेक्ट क्राइटेरिया नहीं है। अभी तो कुछ लोग क्या करते हैं, रेडियोग्राफ लेते हैं और उनको सेटिस्फेक्शन आता है तो आगे जाके वो काम करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब ब्लीचिंग, ब्लीचिंग में क्या होता है, टूथ को अंदर से ऑक्साइड्स प्रोवाइड करना है, वो ब्लीच होकर वाइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, स्टेन्स होता है तभी हम ब्लीचिंग
यूज कर सकते हैं। कौन कौन से एजेंट होते हैं? एक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, दूसरा होता है कार्बामाइड पेरोक्साइड। कार्बामाइड पेरोक्साइड में क्या होता है, वो यूरिया रिलीज करते हैं, ठीक है, और यूरिया से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आता है, ठीक है, और जो अमोनिया का पीएच हाई होता है ना, वो ब्लीचिंग करता है। तो ये एमसीक्यू ऐसा भी है कि यूरिया में कार्बामाइड पेरोक्साइड के बाय प्रोडक्ट क्या क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया, एमोनिया का पीएच हाई है, इसलिए वो ब्लीचिंग करता है, ठीक है। अब कार्बामाइड पेरोक्साइड को ज्यादा टाइम चाहिए, ठीक है, टूथ को ब्लीच करने के लिए। तो वो घर की जो टेक्निक है ना, होम ब्लीचिंग, आगे हम डिस्कस करते हैं, उसमें आएगा इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो क्लिनिक में आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज कर सकते हो, और घर पे अगर करना है तो कार्बामाइड पेरोक्साइड, ठीक है, वो आपको याद रखना है। अब कौन कौन सी टेक्निक है, पहले तो ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। ब्लीचिंग का मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज, ठीक है, तो वो सेंसिटिविटी होती है, एपाइकल पेरिडोंटाइटिस होता है, वो सेंसिटिविटी होती है, इरिटेशन होता है, वो उसका मेन डिसएडवांटेज है। फिर आता है होम ब्लीचिंग। होम ब्लीचिंग में अभी हमने आपको बताया कि कार्बामाइड पेरोक्साइड आपको ट्रे के अंदर रख देना है, पेशेंट को बोलना है कि भाई ये ट्रे आपको पूरी रात लगा कर रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर दूसरी चीज ये भी कर सकते हो, कार्बामाइड पेरोक्साइड का रिजल्ट आपको नहीं अच्छा लगता तो H2O2 दे सकते हो। ऐसी स्ट्रिप देनी है जिसमें H2O2 कंटेन हो, और पेशेंट को पहन के रख लेना है, लेकिन उस स्ट्रिप में खाली 30 मिनट्स का ही एक्शन रहेगा H2O2 का, बाकी वो कोई काम की नहीं है, ठीक है। अब आता है ऑफिस ब्लीचिंग। ऑफिस ब्लीचिंग में क्या होता है, आपको लिक्विड डैम, ताकि वो जिंजाइवा को इरिटेट ना हो, जिंजाइवा पर वो डैम लगा देना है, ठीक है, वो प्रिवेंटिव मेजर है, जिंजाइवा को बर्न ना हो, इन्फ्लेम ना हो, इसलिए। फिर ब्लीचिंग एजेंट प्लेस कर देना है, ठीक है, फिर उसको लेजर या लाइट को देना है उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये उसकी ऑफिस की टेक्निक है, ये आपको याद रखें। अभी पोला कुछ कीट आती है, पोला कीट आती है ब्लीचिंग की, उससे सब लोग ब्लीचिंग करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब नॉन वाइटल टीथ की ब्लीचिंग क्या है, ठीक है, वाइटल का तो आपने देख लिया, H2O2 और कार्बामाइड पेरोक्साइड आता है। नॉन वाइटल में सुपर ऑक्सोल आता है, उसमें H2O2 और डिस्टिल वाटर और प्लस सोडियम परबोरेट, ये दोनों एजेंट यूज होंगे। उसमें क्या होगा, ये सोडियम परबोरेट होगा ना, वो सोडियम मेटाबोरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन है ना, वो ब्लीच करेगा, ठीक है, वो आपको याद रखना है। अब नॉन वाइटल टूथ के लिए क्या आएगा, वॉकिंग ब्लीच आएगा, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, पहले बैरियर प्लेस कर देना है जिन जगह पर, फिर ब्लीचिंग एजेंट कर देना है, और टूथ को सील कर देना है GIC से। एक वीक के बाद उसको रिलीज करना है, तब जाके आपको पता चलेगा कि ब्लीचिंग हो गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी टेक्निक ये है कि आपको बैरियर लगाना है, कॉटन रख देना है, और ये होम वाली टेक्निक है, ठीक है, पेशेंट उसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट इंजेक्ट करता रहेगा ट्रे के अंदर, ठीक है, ये होम वाली टेक्निक है, ये ऑफिस वाली टेक्निक है। फिर इसको बोलते हैं थर्मोकैटालाइट ब्लीचिंग, ये तीसरा मेजर है। उसमें क्या होता है कि आपको सुपर ऑक्सोल प्लेस कर देना है कैनाल के अंदर, और हीट अप्लाई करना है, लेकिन उसका एक ही डिसएडवांटेज है, सर्वाइकल रूट रिजॉर्प्शन। तो जहां भी ब्लीचिंग का आता है ना, ये कॉमन है, सर्वाइकल रूट रिजॉर्प्शन इज एन कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ब्लीचिंग, ठीक है। अब लेजर्स, बहुत सारे लेजर्स आ गए, कौन कौन से, ND YG है, डायोड है, आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं,
अब इसके क्या क्या रूल्स हैं, कौन सी मैकेनिज्म यूज करते हैं, ये आपको पढ़ना है इस नोट्स में से, और आराम से इसके एमसीक्यू भी आ सकते हैं आपकी एग्जाम में। ठीक है, ये नोट्स हम आपको देने वाले हैं, लेकिन आपको ये टाइटल तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब ये हम जब बिलो करेंगे एपेक्स जेनेसिस और एपेक्स एप्लीकेशन, तब आपको ठीक से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम एंडोडोंटिक्स का जो लेक्चर है वो हम एंड कर रहे हैं। दिस इज द फाइनल लेक्चर ऑफ एंडोडोंटिक्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, समझने में दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक आपको फिर से समझना हो, तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, आपको हम आराम से वो पढ़ाएंगे। कोई भी आपको डाउट हो तो भी हम आपको बता सकते हैं। तो गाइस, इट्स टाइम फॉर टेलिंग यू बाय बाय, हैव a nice time and good night. अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आपको कुछ नहीं करना है, इस वेबसाइट पर जाना है, मेडिकल डेंटल एकेडमी पर, वहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद हमारे पास डिटेल्स आएगी आपकी, हम आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट होने के बाद आपको अनलिमिटेड एग्जाम्स मिलेगी, एक दो दिन के लिए फ्री एग्जाम्स आप देख सकते हो। फिर आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो आपको रजिस्ट्रेशन आगे करना है। तो गाइस, आपको अगर मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है तो आप पहले पढ़िए, फिर टेस्ट कीजिए, उससे आपको पता चलेगा आपका इवैल्यूएशन। बाद में आप नई नई चीज़ें आपको पता चलेगी कि इतने भी सोर्स है क्वेश्चंस के। तो यू हैव टू प्रिपेयर thoroughly बिफोर appearing for any MCQ exam. So till now, if you are having any doubt, please contact us, please message us. Otherwise, it's time for telling you bye bye. Have a nice time and good night.